So, J Main is knocking right at your door. This is it. This is the moment of truth. You have been running a marathon for the last couple of years, maybe three, and this is the last 100-meter sprint. Sure, there'll be stress, there'll be anxiety, there'll be nervousness, and 100 emotions you can't even describe. I know exactly how you feel because exactly 15 years ago, I was in the exact same position. So, the question is, with this limited amount of time, is there anything we can do to help us with our preparation? Or what's done is done. And the short answer is yes, there are specific things you can do right now to help you boost your preparation for JEE. तो आपका प्रिपरेशन कैसा भी चला हो अभी तक, अच्छा खराब कोई बात नहीं, अभी आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपको एक बूस्ट मिले। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको ये जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं करना है जिससे आपके 2-3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाए। सो वेलकम टू बायजूस एंड वेलकम टू आवर न्यू सीरीज द रैंकर्स एज। So we have created a series of sessions where we are going to talk all about JEE and specifically how to boost your rank in JEE. And my name is Atiullah and I'm an IIT Kharagpur graduate and I've been teaching IIT JEE physics for a long time now. And since I am a physics teacher, I'm going to tell you in this session a lot about your strategy related to physics. But I'm also going to tell you a lot more which is going to help you in your exam in general. All right, so let's get started. So when I was preparing for JEE, my preparation was okayish. बहुत अच्छा भी नहीं था लेकिन बहुत खराब भी नहीं था. So I was the first IITian in my family, in my neighborhood and in my school. तो maybe there would be others, but मेरा उनसे interaction नहीं था. तो यहाँ मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ. What I'm trying to say is I did not have guidance. So I had very good teachers and I'll always be grateful to them. But मेरे पास कोई guidance नहीं था कि preparation करना कैसे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, strategy क्या होनी चाहिए. I did not have any guidance. And so my first attempt at IIT JEE was a disaster. तो अगर मेरे सारे सब्जेक्ट्स का मार्क्स जोड़ दोगे तो एक सब्जेक्ट का भी कट ऑफ क्लियर नहीं होता. एंड उस समय AI ट्रिपल ई होता था, अभी उसको JEE मेन कहते हैं. एंड AI ट्रिपल ई में मेरी रैंक इतनी बड़ी थी कि मुझे आज तक याद भी नहीं हुई वो रैंक. तो उस वक्त लगता था यार कि काश कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन या कोई गाइड, कोई मेंटर होता जो इस प्रोसेस के थ्रू गुजर चुका है एंड दे कुड टेल अस कि व्हाट शुड वी डू एग्जैक्टली, प्रिपरेशन करना कैसे चाहिए, क्या चीज दिमाग में रखना चाहिए, क्या चीज छोड़ना चाहिए. सो व्हेन आई ड्रॉप्ड अ ईयर, तो सबसे पहले मैंने ये एनालाइज किया कि यार मेरा प्रिपरेशन इतना बुरा नहीं था बट रिजल्ट इतना खराब क्यों आया. सो उस समय हमारे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं थे. वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट एंड अदर थिंग्स. सो वी हैड आवर बुक्स, वी हैड प्रीवियस ईयर पेपर्स, बट वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल. सो आई डाइव्ड इनटू प्रीवियस ईयर पेपर्स, किस क्वेश्चंस, किस चैप्टर का क्या वेटेज होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आसान चैप्टर्स कौन से हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं. सो आई डिड ऑल दैट एनालिसिस ऑल बाय माई सेल्फ. और तब जाके पता चला कि the game I was playing was wrong. I was playing a different game altogether. So क्रिकेट के फील्ड में मैं हॉकी स्टिक से खेल रहा था तो विकेट तो गिरना ही था. And then I understood कि what is it that we should do to crack this examination. So then I used the information and all that knowledge that I gathered to my advantage and finally good things happened. So if you want to give a boost to your preparation, if you want to make an impact in this limited amount of time, then listen and listen well because this works. I used it to crack JEE. A lot of my students have used it to crack JEE. So you can also use it to make the most of the remaining time. So let's get right into it. So I will break the entire strategy that I'm going to talk about in two phases. Okay? पहला फेज है आज के दिन से, yes, right now, right after this session, right from today till the day before the exam. So इस पीरियड को हम कहते हैं प्रेपरेशन. एंड एग्जाम के दिन क्या करना है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परामेंट. सो टू बी सक्सेसफुल इन द एग्जाम, both preparation as well as temperament is very important and we are going to talk about both the things. Okay, so first let's talk about preparation. P for preparation.
P फॉर प्लानिंग। तो सबसे पहले समझिए कि आपका प्लान क्या होना चाहिए। प्लान नंबर 1, नो योर सिलेबस। ठीक है, ऑफ कोर्स आई नो दैट यू नो योर सिलेबस, आप 2 साल से वो पढ़ते आ रहे हो, बट इस सिलेबस का सिग्निफिकेंस क्या है? देयर इज अ डीपर मीनिंग टू इट। ओके, एंड लेट्स सी दैट। हम लोग 11th का सिलेबस कितने टाइम पढ़ते हैं? 12 से 15 महीना वी कीप स्टडिंग क्लास 11th। ठीक है, एंड बनता है बिकॉज बहुत बड़ा सिलेबस है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स, सो वी स्पेंड 12 to 15 months on class 11. We hardly spend 6 to 7 months on class 12, but look at the weightage. Class 11 and class 12 50-50. तो जितनी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं क्लास 11 पे और जितनी कम मेहनत कर रहे हैं क्लास 12 पे, वेटेज तो इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि वी हैव टू पुट मोर एफर्ट ऑन क्लास 12, नंबर 1, एंड वील एलैबोरेट ऑन दिस नेक्स्ट। अब एक बार यूनिट का ब्रेकडाउन देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट किया है वेटेज। पिछले 18 साल के पेपर उठाए मैंने एंड देन आई सॉ कि किस यूनिट से कितना वेटेज आया है जेई में। ओके, नाउ यू वुड सी एंड यू विल से कि यार सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है? मैकेनिक्स 2 का है। तो आप क्या बोलोगे? यार मैकेनिक्स 2 पे तो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड दिस इज द मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक। ठीक है, नाउ यू लुक एट द weightage of mechanics 2, but you don't see the difficulty level of mechanics 2. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज देखो, इट इज अबाउट 17%, प्रॉब्ली 2% कम होगा, बट द एफर्ट यू आर गोइंग टू पुट इन मॉडर्न फिजिक्स इज गोइंग टू बी मच लोअर देन द एफर्ट यू विल हैव टू पुट इन मैकेनिक्स 2। मतलब we have to focus on chapters which have a high ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाले चैप्टर्स पे हमको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैकेनिक्स 2 और मॉडर्न फिजिक्स का कंपैरिजन करें तो मैकेनिक्स 2 में क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास? सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, एसएचएम। दीज आर बिग चैप्टर्स, वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स, एंड आई वुड से दीज आर डिफिकल्ट चैप्टर्स। तो आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है कि वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब वहीं पे मॉडर्न फिजिक्स को देखो, क्या है उसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोर्स मॉडल, रेडियो एक्टिविटी, सेमीकंडक्टर। दीज आर एक्सट्रीमली सिंपल चैप्टर्स। बिल्कुल कोई 10th का बच्चा भी ये पढ़ के सॉल्व कर सकता है। फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर एक बोर्स मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व करके और एक सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेम मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? ऑब्वियसली जिस पे कम एफर्ट लगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा एग्जाम में कि आपने रोटेशन का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया और एग्जामिनर ने देखा और बोला कि यार नहीं नहीं, इसको तो 3 मार्क्स एक्स्ट्रा देने चाहिए। नहीं, तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, डिफिकल्ट या आसान, आपको मार्क्स मिलने हैं सेम। ठीक है, सो आवर फोकस शुड बी to find those high ROI chapters and focus on them in this limited amount of time. Okay, now I'm going to get into what are those chapters. I'll just give you an idea. ठीक है, so all this is data. मैं अपने दिमाग से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, all this is fact and data. Okay, तो यहाँ पे देखो, so you compare mechanics 2 and modern physics. Mechanics 2 very high input required, modern physics very low input required, but weightage देखोगे तो लगभग बराबर ही है. So which should you focus on? Obviously modern physics. Okay, let's take another example. Let's take electromagnetism. ठीक है, magnetism, electromagnetism, AC, all those chapters clubbed together, उनका weightage देखो, and mechanics 1 का weightage देखो. ठीक है, mechanics 1 moderate difficulty topic, electromagnetism easy topic. ठीक है, which one should you focus on? Next, waves, or you can compare that with geometrical optics, let's say. तो waves अक्सर it is a very neglected topic, क्योंकि 11th में एंड में आता है, उस वक्त आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है, आप भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन waves का आप वेटेज देखो, it has a decent weightage and difficulty level is less, right? So in this limited amount of time we need to focus on high ROI chapters. ठीक है, तो I will exactly tell you कि what are the units you should focus on, and I will also tell you the reason, but उससे पहले keep one thing in mind, time कम है। ठीक है, I agree and you understand कि time कम है, तो अपने सिलेबस को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। नंबर 1, योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स।
ठीक है, तो जो स्ट्रांग है यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ, उसको और स्ट्रांग बनाना है, नंबर 1। दूसरे जो है, जो मॉडरेट स्ट्रेंथ है जिसका आप, ठीक है, बहुत अच्छे से भी नहीं पढ़ा हुआ है बट थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, उन टॉपिक्स को स्ट्रांग बनाना है बट selectively. So I'll tell you exactly which topics you should select in this time. Okay? And the third thing is, जो आपने चैप्टर्स कभी देखे ही नहीं, कभी छुए नहीं, कभी सुने नहीं, उन चैप्टर से अभी दूर रहना है, ठीक है। सो प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ। तो हम लोग कहते हैं कि इफ यू डोंट हैव द बेस्ट, मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव। तो प्रॉब्ली आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं होगा मे बी, लेकिन जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आपको उसको पकड़ के चलना है एंड उसको अपना वेपन या स्ट्रेंथ बनाना है। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग राइट इनटू द टॉपिक्स यू शुड स्टडी, ठीक है, एंड दिस इज प्रायोरिटी वाइज एंड सबका मैं आपको रीजन दूंगा, मैं हवा में कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर 1 रेडार पे आना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, वेटेज 17% और वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी, ठीक है। दूसरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, डिसेंट वेटेज एंड ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है। व्हाट मेक्स इट मोर इजी इज दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपने केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, ठीक है, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया होगा ही, थोड़ा आपको ब्रशअप करना पड़ेगा, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी, thermodynamics, specific heat capacity of gases, this also to certain extent you have already studied in chemistry, so not a lot of effort required, and these are simple chapters. They don't take a lot of time but they have a substantial weightage. Okay, so you are studying it for one subject but you are covering it for 2 subject, तो 1 पे 1 फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा what do we have in modern physics? We have semiconductors, ठीक है, agreed, semiconductors is a topic which is always neglected, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 के एंड में आता है, तब तक आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। So the thing here is that you should not have a favorite topic at this point of time, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना यार सेमीकंडक्टर बहुत बोरिंग है, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता है पढ़ने में, मुझे मैकेनिक्स पढ़ने में मजा आता है, मैं वही पढ़ूंगा, ठीक है। दिस एटीट्यूड इज नॉट गोइंग टू वर्क राइट नाउ। तो अभी हमें फोकस इस पे नहीं करना है कि कौन सा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, कौन सा चैप्टर बोरिंग है, हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और उसके लिए वी हैव टू डू वॉट एवर इट टेक्स, विच मीन्स आई हैव टू चूज द टॉपिक्स विच आर लो इनपुट हाई आउटपुट, नो मैटर हाउ बोरिंग और डल दे आर, ठीक है। आई अग्री, मॉडर्न फिजिक्स मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता है, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आता है, बट डज नॉट मैटर, अगर वो मुझे मार्क्स दिलवाएगा तो मैं पढ़ूंगा, और मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, राइट। सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। सिमिलरली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर अदर टॉपिक्स, जैसे हीट ट्रांसफर में इफ यू टॉक अबाउट कंडक्शन, वो क्या है, दैट इज जस्ट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो कंडक्शन भी आता है। उसके अलावा व्हाट इज देयर इज कन्वेक्शन, ठीक है, और रेडिएशन, उसमें क्या है, देयर इज वन फॉर्मूला। उसके अलावा क्या है, देयर इज एक्सपेंशन, अगेन वन फॉर्मूला, calorimetry, one formula, right? So these topics are just so small and so easy topics and so much scoring topics कि इनको तो आपको छोड़ना नहीं है। So you should focus on these topics. This is going to become your number 1 priority. Next, waves, class 11th का सबसे neglected topic, ठीक है। Waves has a decent weightage, 7% weightage है, ठीक है। Now the striking thing about waves is कि आप पढ़ोगे एक waves और आप सॉल्व कर पाओगे 3 चैप्टर्स, तो आपको 1 पे 2 फ्री मिल रहा है। दिस इज अ बोनांजा ऑफर, ठीक है, बिकॉज वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, 75% ओवरलैप है उन चैप्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल वेव इक्वेशन, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव्स, these concepts are identical across these 3 chapters. तो आप पढ़ोगे एक चैप्टर और आप सॉल्व कर पाओगे 3 चैप्टर, और क्या चाहिए। दिस इज द मेगा डील दैट यू हैव राइट नाउ। तो वेव्स पे बिल्कुल फोकस करना है, एंड इट इज अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। एंड आई रिमेंबर जब मैंने 2007 में जेई लिखा था, द ईयर आई क्वालिफाइड, उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर एक क्वेश्चन आया था पैराग्राफ का, 12 मार्क्स, 3 questions,
4 marks, and everyone who had the slightest idea about Huygens principle had solved it. I had left it, and मेरे 12 marks वहां पे चले गए थे. ठीक है? So these simple topics should not be left out. So waves is going to be your number 2 priority. Next, electrostatics. So electrostatics is not an easy chapter. I won't classify it as easy. It is a moderate level chapter. Weightage भी decent है. लेकिन I want you to study electrostatics और focus on electrostatics because electrostatics की analogy लेके बहुत सारे chapters automatically हो जाते हैं. For example, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला, ये कंपैरिजन अगर आपको पता है देन 80% ऑफ ग्रेविटेशन इज डन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है एंड यू नो द कंपैरिजन, यू कैन टेक द एनालॉजी, तो 80% ऑफ ग्रेविटेशन तो आराम से हो गया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली इट्स डन. ठीक है, जो 20% पढ़ा बचा है वो क्या है? प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज, विच इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक. तो पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन फ्री मिल गया. Plus, now you think about magnetism. तो magnetism I'm talking about magnetism, electromagnetism, AC. वो पूरे यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ. So the weightage is very very large. 13% weightage है और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है. एंड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से एनालॉजी मिल जाएगी. आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल पढ़ा है तो परमानेंट मैग्नेट्स तो ऑटोमेटिकली हो गया. आपने गॉसेस लॉ पढ़ा है तो सेम सिमेट्री के आर्ग्यूमेंट्स एम्पियर्स लॉ में भी लगते हैं. ठीक है, अगर आपने डाइपोल पढ़ा है तो मैग्नेटिक डाइपोल भी बहुत सिमिलर होता है. करेक्ट. आपको अगर एसी पढ़ना है तो एसी का जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है? I = I0 sin ओमेगा t + 5. कैसा इक्वेशन होता है? बिल्कुल वेव जैसा इक्वेशन होता है. तो आपने अगर वेव पढ़ा है तो आपका एसी भी हो गया. सो आसान चैप्टर्स भी हैं, प्लस देयर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, अ लॉट ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, अ लॉट ऑफ एनालॉजीज यू कैन टेक. तो मेहनत एक बार करनी है बट फायदा 2 बार होने वाला है. सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड यू शुड कीप इन माइंड. ओके, तो मैंने क्या कहा था? 3. स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, मॉडरेट को, जो भी टॉपिक्स आपके मॉडरेट स्ट्रेंथ के हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, बट सेलेक्टिवली. एंड सेलेक्टिवली हाउ? लाइक दिस, लाइक आई हैव टोल्ड यू, इन दिस प्रायोरिटी ऑर्डर. ठीक है. नाउ आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जो इजी चैप्टर्स हैं उनको अभी, सॉरी, जो वीक चैप्टर्स हैं जो आपने कभी देखे नहीं है उनको आपको छोड़ देना है. ठीक है. यहां पे आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस आई विल जस्ट गो बैक एंड टच अपॉन दिस. ठीक है. Now you think about this, modern physics, heat and thermodynamics. मान लो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा है, बट दीज आर सच इजी चैप्टर्स. ठीक है, बहुत कम टाइम में यू कैन कवर दिस इवन इफ यू हैव नेवर स्टडीड दिस. ठीक है, वेटेज हाई है एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेरी वेरी इजी. तो दिस यू शुड स्टडी इवन इफ यू हैवंट टिल नाउ. ठीक है, वैसा ही एक चैप्टर है वेव्स, हार्डली 1 से 2 दिन लगेगा और आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, हार्डली 1 to 2 days. ठीक है, बट यू लुक एट द वेटेज, यू लुक एट द डिफिकल्टी लेवल, इट इज अ वेरी हाई ROI चैप्टर. तो आपने अगर कभी वेव्स नहीं पढ़ा है तो भी जस्ट स्पेंड 1 or 2 days, हो जाएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ. नहीं, आई वोंट टेल यू, बट द अदर 3 topics that I told about, that can be done in very very small amount of time and those are extremely scoring. ठीक है. Now I'm going to be a little more bold in saying that जो भी चैप्टर्स हैं आपके जो जेई मेन के सिलेबस में है लेकिन जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, चैप्टर्स लाइक एक्स-रे, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सेमीकंडक्टर्स एंड अदर चैप्टर्स. ठीक है, अग्रीड, वेरी बोरिंग चैप्टर्स, मुझे भी पढ़ाने में मजा नहीं आता है, बट very simple chapters, very scoring chapters, and the thing is you can complete this in 2 days. मैं 1 day लिखने वाला था बट थोड़ा आपके लिए relaxation, so you can complete all these chapters in 2 days. And अगर इतना करके 4 to 5 questions का difference पड़ जाता है, so whatever you could solve now, let's say you are able to solve 4 to 5 extra questions, it makes a world of difference. जेई में 4 से 5 सवाल में दुनिया बदल जाती है. Your rank can go from here to there.
ठीक है. So this is something you should absolutely keep in mind. Retain the priority order. Go and study as per the priority order. Practice as per the priority order. But अगर कभी नहीं पढ़ा है तो भी 2-3 टॉपिक्स तो यार पढ़ सकते हैं. Doesn't take a lot of time and it is going to be very very rewarding. तो ये थी प्रेपरेशन की बात. अब चलते हैं आपके एग्जाम के डे पर. So the thing that will be of prime importance on your examination day is going to be temperament. तो टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? जब आप एग्जाम देने जाते हो तो यू फील नर्वस, यू फील एंग्शियस, स्ट्रेस होता है, मिस्टेक्स करते हैं. अ गुड टेम्परामेंट मीन्स दैट यू आर एबल टू कीप दीज थिंग्स इन चेक. यू डोंट लेट दीज थिंग्स ब्रिंग डाउन योर परफॉर्मेंस. तो टेम्परामेंट का मतलब होता है राइट एटीट्यूड और राइट स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को. तो अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है बट टेम्परामेंट अच्छा नहीं है तो वो सारी मेहनत बेकार हो सकती है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट टेम्परामेंट. तो टेम्परामेंट के बारे में 3 चीजें यू विल हैव टू अंडरस्टैंड: प्रैक्टिस, प्रायोरिटाइजेशन एंड ईगो मैनेजमेंट. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस की. ठीक है. तो जब आप एग्जाम में जाते हो, नर्वसनेस होती है, टेंशन होती है, मिस्टेक्स करते हैं. हाउ डू यू कोप विद दिस? How do you get better at anything? You get better by practicing it again and again and again. Repetition, right? So इसीलिए 2 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिस. One is your mock test and the other is previous year questions. तो मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है. So the number 1 strategy right now for your temperament, for improving your temperament, for managing that stress, for managing anxiety is by going through that period before the actual day. जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लिखोगे उतना ज्यादा प्रोफिशिएंट होते जाओगे इन चीजों को हैंडल करने के लिए. ठीक है. सो आई विल से दैट इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, गाइड एंड सेवियर एट दिस पॉइंट. तो मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना है. ठीक है. मॉक टेस्ट मजाक नहीं है. मॉक टेस्ट शुड बी लाइक द एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट. कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं. तो पास में फोन नहीं रखना है. ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं और बीच में ही हम व्हाट्सएप खोल के मीम शेयर कर रहे हैं. ये सब नहीं करना है. ठीक है. इट शुड रेप्लीकेट द एक्चुअल टेस्ट एनवायरनमेंट. तो फोन रूम के बाहर, रूम बंद, नो डिस्ट्रैक्शन, नो अदर ब्राउजर ऑन योर पीसी एंड यू attempt your questions very very seriously. If you are able to do that, वो जो डर है, वो जो nervousness है, वो आपकी चली जाएगी on the day of the examination. So extremely important. Mock tests are extremely important. Next, what you should do is make 1 mock test per day policy. ठीक है. ज्यादा दिन बचा नहीं है अब एग्जाम में. ऑल राइट. अब आपके पास किताब से पढ़ने का टाइम नहीं है. द बेस्ट वे टू रिवाइज थिंग्स और टू लुक एट योर प्रिपरेशन, अंडरस्टैंड हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग, इज टेकिंग मॉक टेस्ट. ठीक है. तो अगर आप दिन में 8-10 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे तो आप मॉक टेस्ट के लिए निकाल ही सकते हो ना. तो टेक 1 मॉक टेस्ट एवरी डे. दिस इज गोइंग टू टेल यू कि कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक आपके मॉडरेट या वीक हैं. और ये एक मॉक टेस्ट से पता नहीं चलेगा. ठीक है. व्हेन यू टेक 6, 8, 10 मॉक टेस्ट तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे टॉपिक स्ट्रांग है, ये मेरे मॉडरेट या वीक टॉपिक्स हैं. तो जो स्ट्रांग है वेरी गुड, कीप देम स्ट्रांग. बट जो वीक या मॉडरेट हैं वहां पे यू शुड गो एंड आइडेंटिफाई द हाई ROI टॉपिक्स. हर टॉपिक को देखने का टाइम नहीं है बट वी हैव डिस्कस द हाई ROI टॉपिक्स. वहां से आप उन टॉपिक्स को पिक करो जो आपको लगता है कि वो वीक रह गए हैं या मॉडरेट स्ट्रेंथ है उसमें, एंड देन यू रिवाइज विद द हेल्प ऑफ नोट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक है. किताब पढ़ने का टाइम नहीं है. जो टॉपिक आपका वीक है, नोट्स उठाओ, नोट्स से पढ़ो एंड देन सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर. लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप उस टॉपिक के ऊपर बना डालो. दैट इज इट. दैट्स ऑल दैट यू रिक्वायर. ठीक है. इवन when we were talking about the topics you have never studied in your life, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, तो you don't need to practice a lot. सिर्फ लास्ट 10 साल के पेपर, हर टॉपिक पे कितना होगा, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, वो आप बना दो. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. So this is the best way to revise, and previous year papers are extremely important to understand the psychology of the examiner. आपको exactly पता रहेगा कि एग्जाम में कैसे questions आते हैं. That is the best example of the kind of questions that can come in your examination. So mock tests and previous year papers are your best friends right now.
नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजेशन. प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है? व्हेन यू स्टार्ट योर एग्जाम, द फर्स्ट 10 मिनट्स डिसाइड योर फेट. ठीक है, आई एम बीइंग वेरी बोल्ड, बट आई एम सेइंग दैट द फर्स्ट 10 मिनट्स डिसाइड द फेट इन योर एग्जामिनेशन. वाई? क्योंकि शुरू के 10 मिनट में अगर आपने 2-3 क्वेश्चन बना लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे. अगर शुरू के 10 मिनट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे. ठीक है, एंड देन यू विल स्टार्ट टू पैनिक. उसके बाद थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. ठीक है, ये हमारी गलती नहीं है. देन द ब्रेन गेट्स वेरी पैनिकी, और उस समय जो आपका स्टेट ऑफ माइंड रहता है, यू आर नॉट एबल टू फोकस प्रॉपर्ली. जो क्वेश्चंस प्रॉब्ली आप बना भी सकते हो, नर्वसनेस की वजह से वो भी आप नहीं बना पाओगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट राइट. इफ यू स्टार्ट राइट, बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी. तो कैसे स्टार्ट करना है राइट? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड. बाय टेकिंग मॉक टेस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ है. सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि गो विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. अगर आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के साथ जाते हो तो इट हैज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि पहले 10 मिनट में वो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा. अगर 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा तो इट गिव्स यू अ बिग बूस्ट. ठीक है, सो गो थ्रू द मॉक टेस्ट, टेक मॉक टेस्ट एंड अंडरस्टैंड. उसको उसके साथ रेपिटेशन करो, उसके साथ आप ट्रायल एंड एरर करो. कभी मैथ्स पहले स्टार्ट कर दिया, कभी केमिस्ट्री, कभी फिजिक्स, एंड यू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. बट द कॉन्सेप्ट हियर इज की स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक, सो दैट पहले 10 मिनट में यू आर एबल टू सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करते हैं क्योंकि या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा. जनरली अगर उन्हें पढ़ा है तो बन जाता है. कुछ लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं. दिस इज योर कॉल, बट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. Strongest topic so that you have the highest probability of solving at least 1 or 2 questions in the first 10 minutes. ठीक है. दूसरी चीज, मान लो कि पहले 10 मिनट में क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है. ऑल्दो वेरी डिफिकल्ट, easier said than done, लेकिन उस समय पैनिक नहीं करना है. याद रखो, हमें 100% मार्क्स नहीं लाना है. 50% इज वेरी गुड मार्क्स इन जेई. इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपसे 10 क्वेश्चन शुरू के नहीं बने, यू कीप स्क्रोलिंग और 10 क्वेश्चन नहीं बने, डोंट वरी, 20 क्वेश्चन अभी बाकी हैं. ठीक है, हो सकता है जो इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे स्टैक करके रखे हुए हों. दैट इज वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. तो नर्वस नहीं होना है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मूव ऑन. अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, यू मूव ऑन, क्योंकि एंड में हो सकता है बनने वाले क्वेश्चंस हों. सो इवन इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, 20 मिनट्स बहुत कम क्वेश्चंस बने हों, बट बी होपफुल दैट आगे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे से बनने वाले हैं, या ऐसे सब्जेक्ट भी है जो मेरा शायद स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और शायद मैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स स्कोर करके कॉम्पनसेट कर पाऊं. ठीक है, इन नो वे यू शुड लेट योर इमोशंस टेक ओवर एट दैट पॉइंट इन टाइम. ओके, so this is number 1. Second, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो एक गट फील होती है, एक फेमिलियरिटी होती है विद क्वेश्चंस. तो जैसे मुझे अगर पुली उली के क्वेश्चन दिखते हैं, मुझे लगता है हाँ ये तो मुझसे बन जाएंगे. ठीक है, या फिर अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और आपको दिख रहा है क्वेश्चंस की हाँ ये मुझे फेमिलियर लग रहा है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो एक पैटर्न रिकॉग्निशन या एक गट फीलिंग जिसको कहते हैं, वो आपके पास होती है. सो ट्राई टू स्टार्ट विद क्वेश्चंस व्हिच आर अ बिट फेमिलियर. आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और इसका आपको कुछ हवा ही नहीं लग रही है कि ये किस टॉपिक का है, तो उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. इन द बिगिनिंग स्पेशली यू शुड try to identify कि familiar मुझे क्या लग रहा है, and then attempt those questions. That will have a higher probability of you solving that question. तो familiar questions पे ध्यान देना है. अगर question solve हो गया, very good, we go to the next question. ठीक है, लेकिन अगर हमने एक क्वेश्चन पे, mark my words, 1 मिनट स्पेंड कर दिया है and we are not getting a direction कि यहां से आंसर कैसे आएगा. ठीक है, हो सकता है बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, आपको पता है कि हाँ ये मैं इस क्वेश्चन अभी ऐसे सॉल्व कर लूंगा, बट यू हैव स्पेंड 1 मिनट एंड यू डोंट हैव द डायरेक्शन राइट नाउ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसा होगा. तो मूव ऑन, डू नॉट स्पेंड मोर देन 1 मिनट ऑन अ क्वेश्चन दैट यू आर स्टक ऑन. ठीक है, मूव ऑन एंड मार्क दोस क्वेश्चंस इन 3 ways. 1, कि यार ये कॉन्सेप्ट मेरा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस अभी आंसर मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्यों. ठीक है, मार्क दैट एज लेट्स से ए. दूसरा है कि यार हाँ ये कॉन्सेप्ट से मैं फेमिलियर हूं, बट मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है, शायद ज्यादा टाइम स्पेंड करें तो मैं सॉल्व कर पाऊं. ठीक है, दैट इज बी.
सी ऐसा है जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता ही नहीं चला ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपने कभी या वो चैप्टर आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, यू मार्क इट एज सी। व्हेन यू हैव ब्राउज थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, नाउ यू कम बैक, ठीक है, यू कम बैक इन द ऑर्डर ए टू बी, ठीक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें और ये मैं सॉल्व कर लूंगा, उस पे जाओ। फिर जो कम फेमिलियर है उस पे जाओ, एंड सी पे कभी जाओ नहीं, कभी भी नहीं जाओ, इस पे टाइम स्पेंड करके कोई मतलब नहीं है। वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस जिसमें से आप आसान पिक करके बना सकते हो, इन टफ क्वेश्चंस पे या अनफेमिलियर क्वेश्चंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। So this is how you should prioritize how you are attempting your questions and go about your examination. Next, this is so important. I cannot emphasize on how important it is. ठीक है, तो जैसे हम लोग we go to mosque or a temple, what we do, we leave our slippers outside. Similarly, when you are going to an examination hall, leave your ego outside. It has no place in an examination hall. ठीक है, अंडरस्टैंड कि क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं ना, टेस्ट मैचेस में स्पेशली, वेल लेफ्ट। भाई वेल लेफ्ट का मतलब क्या है? आपने तो बॉल छोड़ दी, आपने एक बॉल वेस्ट की, आपने कोई रन नहीं बनाया, फिर वेल लेफ्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सर्वाइविंग इन दैट मैच इज मोर इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट rather than trying to hit a ball out of the park. अगर आपने पहला 1 घंटा पहला सेशन सर्वाइव कर लिया तो बाकी 2 सेशन में आप फोड़ दोगे, लेकिन वो पहला एक सेशन सर्वाइव करना बहुत जरूरी होता है, और वहां पे आप बॉलर को अपना ईगो नहीं दिखा सकते हो, राइट? इफ यू डू दैट, इफ यू ट्राई टू हिट अ बॉल विच इज नॉट मेंट फॉर हिटिंग, देन यू विल गेट आउट। ठीक है, फिर क्या फायदा? फिर तो गया ना, पूरा अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई। सो नो मैटर हाउ वेल यू हैव स्टडीड अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, मुझे मैकेनिक्स का नशा हो गया था, मैं दिन रात मैकेनिक्स पढ़ता रहता था, मैं इरोडो सॉल्व करता रहता था, एक क्वेश्चन 2-3 दिन लेके बैठा रहता था, ठीक है, तो मुझे लगता था यार मैकेनिक्स पे जो क्वेश्चन आएगा मुझे बना ही देना है, मुझसे बनेगा कैसे नहीं, ऐसा हो कैसे सकता है, मैं दिल पे ले लेता था, ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि रोटेशन का क्वेश्चन हो या फिर मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, मार्क्स आपको सेम मिलना है, ठीक है। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक इट ऑन योर ईगो कि ये क्वेश्चन मैं बना के ही छोड़ूंगा, एंड यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट इग्नोरिंग अदर टॉपिक्स। यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व इज योर ऑब्जेक्टिव, नो मैटर व्हाट टॉपिक्स डू दे बिलोंग टू, ठीक है। सो अंडरस्टैंड योर एग्जामिनेशन टू बी अ वॉर, and all these questions are small battles that you are fighting. तो अगर एक बैटल हार के मैं 4 बैटल जीत जाता हूं तो आई विल हैव द एज इन द वॉर, राइट? तो ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर बैटल जीतने का नहीं है, ऑब्जेक्टिव है टू विन द वॉर। तो इस वजह से नेवर गेट स्टक दैट दिस टॉपिक इज वेरी स्ट्रांग, मेरा ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, मुझसे क्वेश्चन बनेगा कैसे नहीं। 1 मिनट स्पेंड किया, नहीं बना, कोई बात नहीं, मूव ऑन, ऑलराइट? इफ यू गेट स्टक, दैट इज द इट्स कॉल्ड, इसको ब्रेवरी नहीं कहेंगे, इसको हम सुसाइड कहेंगे। That if you get stuck on a question which is extremely difficult, but you have taken that on your ego. So very important, keep that in mind. So finally, last words. एंड का टाइम है, ठीक है, हार्डली आप किसी के पास 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, वेरी लिटिल टाइम दैट यू हैव, ओके। दिस पीरियड कैन बी यूटिलाइज्ड टू गिव यू एन एज। दिस पीरियड, जितना भी छोटा ये पीरियड होगा, इसमें आप कुछ ना कुछ कर सकते हो जिससे यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ बेनिफिट, राइट? So what you need to do right now is give it all you have. Doesn't matter आप कितने थके हुए हो अभी या नहीं हो, कितने मोटिवेटेड हो नहीं हो, this is it, this is the last time, this is the last 100-meter sprint. So give it all you have and don't give any excuse to anyone or yourself. ठीक है, अब excuse देने का टाइम नहीं है। अगर आपको नींद आती है तो चाय पी के पढ़ो यार,
अगर आपके सर में दर्द होता है तो डिस्प्रिन खा के पढ़ो, आपके घर में गेस्ट आए हैं तो किसी दोस्त के घर जाके पढ़ो, बट अब एक्सक्यूज का टाइम नहीं है. यू हैव टू गिव all that you have, and if you follow this strategy, it is going to make a lot of difference, and you can trust me on that. Okay, so finally, thanks a lot for watching this session. I hope this helps and you are able to follow this properly, and be connected with us. Keep following us, because this rankers edge is going to be a long series, and हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, प्लस जैसे आज मैंने फिजिक्स के बारे में बात की तो केमिस्ट्री, मैथ एंड अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे. ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड एंड विश यू द बेस्ट ऑफ लक, and I hope you make the best out of this session. Thank you for watching.